Jai Hind students. So my name is Manish Pratap Singh, as you know, and I'm heading the UPPCS vertical at Understand UPSC. And your friend, guide, and philosopher, as I've always mentioned, that first is your emotional support, what we have to provide, and is a consistency in the examination process. So now we have come up with our new test series, that is Pragati, focusing entirely on UPPCS prelims. On the basis of this, we will be covering your whole subjects like history, polity, geography, environment, economy, current affairs, UP special, CSAT in a very holistic manner. So this test series is based upon 15 tests that will be of GS. We will be having 3 FLTs, 2 simulator tests, which we will be having in a manner of GS plus CSAT like UPPCS conduct. So our UPPCS prelims is on 6th of, so this date is being given by UPPCS Commission. So prelims is on 6th of December. So from now onwards, we are having approx 4 months to cover the prelim subjects, all the subjects related to it, and practice as much as you can. So this test series Pragati is based upon this. So what we are giving you in the test series is, first is test discussion. So test discussion is very important. When you are giving the test, you are covering your subject plus PYQs. But in test discussion, you will be able to get this thing, in-depth discussion and techniques. So there are few questions which are not being directly asked by UPPCS Commission, UPPSC Commission. So in that, what are the technique being used, that has to be covered here, and in-depth discussion. So if we are covering one question, like let's suppose we are covering the question related to Indus Valley civilization, there are sites and the river associated with it. But what are the other sites and rivers that we have to cover? That will be going to be covered in in-depth discussion, and the technique, like in Rigvedic, what is the agricultural background was there, in later Vedic, then comes the Iron Age, Buddhism, Jainism simultaneously, and timeline has been there. So you have to cover that timeline so that in examination process, while you are solving your prelims paper in the examination hall, you have to go through that minute details that will be covered in our discussion. So we are covering the test discussion in a very holistic manner. Second thing is comprehensive test content. So what we are providing here is that we are giving you the content related to general studies prelims, and in that both the content will be in English and in Hindi. So that will be covering the static part, UP special, and the important thing is on the basis of the latest pattern that commission is following. So your notes will be in such a manner so that you can cover your entire GS syllabus in a very short span of time. So this is our second deliverable. Then comes the current affairs. So as you know that around 30 to 35 questions are being directly asked in the examination. So current affairs is very important. There are not many resources in the market where you can cover the entire 1 year of current affairs for UPPCS examination. For this, you have to go through at least 2 to 3 magazines which are being in the market. So we are providing you the current affairs by the name of MCA. So what this means, that is master current affairs. So while going through our current affairs, you do not need any other magazine from the market, because we have covered all the inputs of that month. Let's suppose we are starting with November 25. So November 25 till September or October, you will be getting each and every month of current affairs, and that current affairs in such a depth manner, so you do not need any other magazine to cover our current affairs section. So this is our third. So we are having another thing which is the USP of Understand UPSC is mentorship.
एज सत्यम सर सेज कि मेंटोरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही कम समय में उस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं, अपने चीज़ों को अच्छे वे में कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जो मेंटोरशिप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर इज़ द मेंटोरशिप, वो ग्रुप मेंटोरशिप होगी, दैट विल बी एन अ ग्रुप। सो इन दैट वी आर फोकसिंग अपॉन your preparation strategy, your doubts resolution and performance analysis. So three things are very important here. आप लोग क्वेश्चन पेपर करते हो, मार्केट से आपने क्वेश्चन पेपर लाए, आपने उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, आपने आंसर्स देखा जो कि आपको बाहर मिल जाते हैं, उसमें से आपने जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो नोट डाउन करी और आप लोग आगे बढ़ गए। लेकिन आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी हमें अगर अभी नहीं लगाया तो 4 महीने के बाद जो आपका पेपर होगा उसमें आपके ये क्वेश्चंस जो आप मार्केट में कर रहे हो ये प्रैक्टिस है, बट वो एक स्ट्रेटेजिक वे में किस तरीके से करना है वो आपको यहाँ पर एक मेंटोरशिप में आप लोगों को बताया जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस होगी आपकी टिल योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आपका 6 दिसंबर को है, तो अभी से जो हमारी टेस्ट सीरीज जो शुरू होगी वहाँ से आपकी प्रीलिम्स तक आपको जो भी डाउट होंगे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, या इवन आपको इससे बाहर भी आपको कोई टॉपिक कवर करना है, वो कहाँ से कवर करना है, क्या हम उस चीज़ में ज़्यादा हमें वेटेज देना है, टाइम कितना देना है, कितने उसको एनालाइज करके पढ़ना है, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक मेंटोरशिप में प्रोवाइड की जाएंगी। सो मेंटोरशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम तो इसको अपना यूएसपी ही मानते हैं, क्योंकि एज सच अभी मार्केट में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 1-on-1 हम लोग जाकर कोई भी बात करता है। तो जो हम लोग 1-on-1 स्टूडेंट से बात करनी है सेशन में, पहले उनकी क्वेरीज को लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मेंस में भी अपना स्टार्ट करा था संपूर्ण बैच, नाउ वी आर रनिंग अवर आरंभ बैच। तो हमारी स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि हम पहले स्टूडेंट से पूछना है कि उसने विद इन दैट वीक उसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, अभी जो टारगेट्स चल रहे हैं वो किस तरीके से उन्होंने टारगेट्स अपने कंप्लीट करे, टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे, पहले उन चीज़ को समझो और उसको उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली बताओ, क्योंकि वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल। अगर आपको कोई स्टूडेंट को 3 आवर्स लग रहा है एक टॉपिक को समझने में, हो सकता है वही टॉपिक किसी और को 5 आवर्स लगे। तो 1-on-1 जो मेंटोरशिप वाला है तो वो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करेंगे वीकली, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वीक में 2 बार भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। तो ये मेंटोरशिप जो है दैट इज़ अवर यूएसपी। तो एक प्रोग्राम में जो हमारा 4 डिलीवरेबल है वो ये है। सो अब टेस्ट प्लान, कि हम लोगों का टेस्ट सीरीज़ का जो प्लान है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आप लोगों को देता हूँ कि हमारा जो टेस्ट सीरीज़ जो है वो 2 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और सीक्वेंशियल हम लोग चल रहे हैं लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री है। तो ये सेक्शनल टेस्ट है हमारे, आपके 150 क्वेश्चंस का सेक्शनल टेस्ट होगा। इसके साथ जो हमने एक एड ऑन करा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एज आई सेड कि उसका वेटेज बहुत है, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस आर बीइंग डायरेक्टली आस्क्ड, फिर वो आपका स्टैटिक हो या आपका इकोनॉमी से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से हो, यूपी स्पेशल में हो, पॉलिटिकल जो भी है, वहाँ से 30 to 35 क्वेश्चंस आने ही हैं। तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड कि लास्ट हमारा जो प्रीलिम्स हुआ था 2025 वाला, वो अक्टूबर में हुआ था। सो वी आर कवरिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम नवंबर 2025। सो प्लान बहुत ही सिंपल है कि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हमें करानी है कि आप लोग हर टेस्ट के साथ अपना करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सो इफ़ यू आर डूइंग एंशिएंट हिस्ट्री देन यू हैव टू कवर नवंबर करंट अफेयर्स, मेडिवल हिस्ट्री दिसंबर, मॉडर्न जनवरी। सो मंथ वाइज यू कैन सी कि हम लोग हर टेस्ट के साथ जो अपना करंट अफेयर्स है वो कर रहे हैं। देन वी आर ऑन 23rd of August we are having Indian polity test February, geography March, environment ecology April to May। तो ये फर्स्ट थिंग तो हमारा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन किस टाइप में हमें किस तरीके से कवरेज करनी है, किस चीज़ से फोकस करना है,
आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम जो करंट अफेयर्स अभी कर रहे हैं उसमें हम कहाँ लैग कर रहे हैं। आप मास्टर करंट अफेयर्स लेंगे हम लोगों को, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से आप पढ़िए, या अदर सोर्सेज से आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, वो होलिस्टिक मैनर में ईच एंड एवरी टेस्ट के साथ 1 मंथ का करंट अफेयर्स आप लोगों का कंप्लीट होगा। इकोनॉमिक्स के साथ हम वी विल बी गोइंग विद यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर करंट अफेयर्स हम लोगों ने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इकोनॉमिक्स के टेस्ट के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आता है तो वो बजट से आएगा या फिर इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। नेक्स्ट टेस्ट, दैट्स नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में वेटेज जो क्वेश्चंस का होता है वो अराउंड 25 to 28 30 क्वेश्चंस तक आता है, इन मैनर ऑफ कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बायो से मिलते हैं, देन वी विल हैविंग केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। सो जब हम जनरल साइंस कवर कर रहे हैं तो हमें जून का करंट अफेयर्स करेंगे। यूपी स्पेशल प्रोमिनेंट है, लास्ट 3 to 4 years में वी हैव सीन दैट नॉट मच ऑफ अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द कमीशन फ्रॉम यूपी स्पेशल, बट दैट डजंट मीन कि यूपी स्पेशल में इस बार अच्छे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, पेपर का नेचर जो है वो फैक्चुअल है। सो यूपी स्पेशल के साथ वी विल बी हैविंग यूपी बजट एंड यूपी इकोनॉमिक सर्वे। फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे अपना निकाला था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो जून का करंट अफेयर्स आपका हो गया। तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑल योर द सेक्शनल टेस्ट ऑफ हिस्ट्री एंड full test of geography, polity, environment, economics, science and tech, science, sorry, that's general science and UP special. Now, as we have discussed that from the very first test we are covering November, December, January, February, March, April, May, and here comes June. So on 4th of October we have planned कि अब इतना जो करंट अफेयर्स वी हैव कवर्ड, अब उसको एक जगह हमें कंसोलिडेट भी करना है उस टेस्ट में। सो 150 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर टेस्ट विच विल बी कवरिंग फ्रॉम जनवरी टू सितंबर, आपका एक करंट अफेयर्स का टेस्ट है। देन कम्स योर फुल लेंथ टेस्ट, द फुल लेंथ टेस्ट FLT 1 GS, April to June current affairs. Again we are revising the April to June current affairs in FLT 1 January to March, FLT 2 April to June, and FLT 3 July to September. So you are saying that month wise हमने current affairs cover करा, then we are having current affairs one more test January to September, then from each and when we are having 3 FLTs, तो again हम revise कर रहे हैं January to March, April to June एंड जुलाई टू सितंबर। सो यहाँ तक आप लोगों का जितना भी प्रोग्राम जो हमारा था वो ये था। अब पेपर हम मोस्टली ऑफलाइन मोड में नहीं है, ये हमारा ऑनलाइन वाला है। तो अभी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि जब स्टूडेंट टेस्ट अपना पेपर 6 दिसंबर को देने जाएगा, तब उसने क्या करना है, तब आप रूम में बैठ के सॉल्व करना, और एक टाइम बाउंड मैनर में आप एक एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है आपके ऊपर उसे कैसे डील करना है, उसके लिए हम लोगों ने एक सिमुलेटर ये प्लान, सिमुलेटर 1 GS विल बी देयर। एक GS का आपका पेपर होगा, एक CSET का आपका पेपर होगा, और 1 ईयर का आपका जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को यहाँ से कवर करना होगा इस टेस्ट में। देन अगेन वी आर हैविंग Simulator 2 in a same manner, GS CSET and 1 year of current affairs. Simulator हमने 1 नवंबर को इसलिए रखा है कि यहाँ तक आप लोगों का जितना भी रिवीजन है, जिसका जो भी प्लान कर रहा है 120 डेज 90 डेज प्लान आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपका पेपर 6 दिसंबर को है, तो एटलीस्ट 31 अक्टूबर तक 2 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर यूपी पीसीएस क्रैक करना है तो मल्टीपल रिवीजन इज द की, बिकॉज नेचर यहाँ पर जो है वो फैक्चुअल है। तो फैक्ट्स अगर आपके
नहीं है तो यूपीपीसीएस में आप लोग अच्छा स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 31 अक्टूबर तक आप लोगों का करंट अफेयर्स 3 टाइम्स आपका रिवाइज हो रहा है। स्टैटिक पोर्शन जो है उसके टेस्ट आपके कवर हो रहे हैं। फिर आपका जो है वो एफएलटी, वो सिमुलेटर 1, सिमुलेटर 2, 1 ईयर का करंट अफेयर्स यहाँ पर भी आएगा। और हर टेस्ट में ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कि हम लोग नवंबर से स्टार्ट कराए और आपको रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन कहीं पर आ गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वही डाले जाएंगे, वरना हर बार आपको जो है वो एक नया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। So this is our total plan of our test series Pragati, which we are launching from 2nd of August. So the number of tests here are, total number of tests are 17, which includes your CSET also, because CSET is very important. CSET का वेटेज यूपीपीसीएस में उतना नहीं है। 33% मार्क्स हमें चाहिए, 100 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन आपके एग्रीगेट सही होने चाहिए। बट मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने जीएस में बहुत मेहनत करी है और सीसेट में उन्होंने एक भी टेस्ट पेपर अपना प्रिपेयर नहीं किया है, एंड दे हैव लैग्ड इन सीसेट। वो स्टूडेंट्स भी हैं जो सर्विसेज में भी हैं, उनका भी नहीं निकला एग्ज़ाम। क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं किए। तो सीसेट को मैं इतना वेटेज नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल वी हैव टू कवर सीसेट ऑल्सो। तो सिमुलेटर में आपका सीसेट है, तो वी आर हैविंग 15 ऑफ योर जीएस प्लस 2 सीसेट। So 17 tests are there in our total test series. So this is very important। ये प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपके मल्टीपल रिविजन्स हो सकें। करंट अफेयर्स का जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट का आपका हो जाए, सीसेट का हो जाए, सिमुलेटर टेस्ट है। कोशिश सिमुलेटर टेस्ट में आप लोगों की ऑफलाइन कराने की हम लोगों की रहेगी कि आप लोगों को जैसे 9:30 to 11:30 GS1 होता है, देन 2:30 to 4:30 हमारा GS2 सीसेट का पेपर होता है। तो उस तरीके से हम लोग इसको भी प्लान करा है हम लोगों ने कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का ये ऑफलाइन मैनर में हो, सो दैट कि वो जो एक एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है वो हमें समझ में आए। आपका पोर्टल पे आपका जाओगे, आप अपना टेस्ट सॉल्व करोगे, आपकी रैंकिंग आएगी जिससे आप पता देखोगे कि कहाँ इंप्रूवमेंट है हमें करना है। रैंकिंग जो अब आती है तो स्टूडेंट बेटर एनालाइज कर सकता है कि हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं। सो दिस टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा पूरा शेड्यूल है वो आप लोगों के सामने है, एंड इसके रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से कवर करो, सो दैट कि आप लोगों का यूपीपीसीएस 2026 का जो टारगेट है उसमें आप अपनी अच्छी सी रैंक अचीव करें। जिसको एसडीएम चाहिए, डीएसपी, आरटीओ, डीपीआर, जिसको जो भी चाहिए वो उसको डिज़ायर्ड रैंक मिले, यही हमारा जो है वो मोटो है। उसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, एंड प्रगति इज़ बीन डिज़ाइन इन सच अ मैनर। तो दिस इज़ अवर टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम। वन मोर थिंग, इस बार यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन आया है, एज वी हैव सीन, सो 500 सीट्स पे नोटिफिकेशन निकाला है। आप लोग नोटिफिकेशन देखिए, पिछले काफ़ी 2-3 सालों में 500 सीट्स पे नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस का नहीं आया है। 2023 में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था वो अराउंड 251 सीट्स पे फाइनल हुआ था। तब भी जब कमीशन ने करा था तो अराउंड कुछ 100 सीट्स पे नोटिफिकेशन करा था। सेम गोज़ विद 2024, 2025 500 सीट्स पे नोटिफिकेशन निकला है। इसका मतलब आप ये समझिए कि जब तक आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, जितनी भी वैकेंसीज कमीशन के पास आएंगी वो सारी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 1100 सीट्स दिस टाइम। इतनी सीट्स 2018 में भी नहीं थी, दैट वाज 989 और 990। 1100 सीट अ बिग चंक। तो अगर आपका टारगेट है यूपीपीसीएस 2026 का, इसके बाद आपको इतनी सीट्स मिलना मुश्किल होंगी, तो आप अपना फोकस जो है वो इस पे लगा दीजिए। 4-5 महीने जी तोड़ मेहनत कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, याद कीजिए, भूल जाइए सब चीज़ें। आपकी रैंक आनी चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो 1100 सीट्स, और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि अराउंड एसडीएम, जिसको हम लोग डेप्यूटी कलेक्टर कहते हैं, अराउंड 90+ सीट्स होंगी। लास्ट डीसी की जो मैक्सिमम सीट्स थी वो 119 थी, दैट वाज इन 2018। उसके बाद
नॉर्मली 55, 50, 45, 35 अराउंड इतनी सीट्स आ रही हैं। तो डीसी पोस्ट के लिए आपको 90 प्लस सीट्स मिल रही हैं, तो इसके बाद नहीं मिलेंगी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस, ये इतनी सीट्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। सो इसलिए आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को मेहनत कीजिए। करंट अफेयर्स पे आपको मेहनत करना होगा, मल्टीपल रिवीजन इज़ द की, एंड प्रैक्टिसिंग योर टेस्ट सीरीज। सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए एंड प्रिपेयर वेल फॉर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन ऑन 6th of December 2026. Thank you.